today we have a few questions from chemistry. Basically, these are from organic chemistry. We are going to name some compounds, but as it is written here, these are the conceptual IUPAC names. Here, I'm not going to name the compounds actually. I'm going to teach you the way by which we should name the organic compounds. So it's not just about naming the compound. It's about how to name the compound basically. So let's start from this very compound. You have the rules of naming the IUPAC compounds. That is, you have the rule of selecting the parent chain, then you will do the numbering, then you will do the naming, but here we have directly the compound and we will directly do the name without discussing the rules, okay? Or we will in situ discuss the rules of naming the IUPAC compounds and the organic compounds. So you know that whenever we have a functional group directly attached to the benzene ring, then the benzene ring is treated as the main chain, that is the principal chain. But if this functional group, the carbon of this functional group is not directly attached to the benzene ring, then this benzene ring is treated as substituent. But in this case, this carbon is directly attached to benzene ring, therefore we will treat this benzene ring as the principal carbon chain. Okay. Now this is the principal carbon chain. Okay. So हमारे पास principal carbon chain की selection हो गई. Now we have to go for the numbering. Absolutely, we should have to start the numbering from the carbon, so that the carbon to which the functional group is attached should get the least number. Okay, that should get the least number. Okay, so we should start from here. So it is 1. Okay, now there is a confusion. That is, if it is 1, there is confusion. That is, whether we will go in this way or we will go in this way. Here comes the concept. Few people will go like this way: 1, 2, 3, 4, 5. Others will go like this way: 1, 2, 3, 4, 5. Now सही कौन से हैं वो हम देखने जा रहे हैं. देखो, those people who will go like this 1, 2, 3, 4, 5, these are absolutely wrong. This numbering is wrong number. If we go like this 1, 2, 3, 4, 5, this numbering is correct number. What is the reason behind this? देखो, those people who will go like this way, उनका कंसेप्ट क्या होता है? वो कहते हैं कि ये जो OH है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड ब्रोमीन जो है सबस्टिट्यूएंट है. सो फंक्शनल ग्रुप को क्या आना चाहिए? लीस्ट नंबर आना चाहिए देन द सबस्टिट्यूएंट. बट दे आर रॉन्ग, बिकॉज जब मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप कोई है, जो हमारा वो टेबल है, प्रियोरिटी टेबल, उसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी जितने भी होंगे वो सबस्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रियोरिटी टेबल में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, बट प्रियोरिटी वाइज हम इसको फंक्शनल ग्रुप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रीट करेंगे, और जो बाकी रह गए उनको हम सबस्टिट्यूएंट्स ट्रीट करते हैं. यानी ये जो है, इट इज अ सबस्टिट्यूएंट हियर. इसकी अहमियत, इसका जो स्टेटस है वो उतना ही है जितना ब्रोमीन का है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक फंक्शनल ग्रुप आ गया. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, बाकी अगर कोई और प्रियोरिटी टेबल में होगा वो एज सबस्टिट्यूएंट हम लेते हैं. सो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज अ सबस्टिट्यूएंट, और इसकी अहमियत उतनी ही है जितनी ब्रोमीन की अहमियत है. ओके, नाउ हम अगर यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाएंगे, फर्क क्या है? देखो, इफ दिस इज सबस्टिट्यूएंट, दिस सबस्टिट्यूएंट, व्हेन वी हैव डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स वी गो बाय द रूल ऑफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, सो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोक्सिल की बात करेंगे, H से आता है, ब्रोमीन जो है वो B से आता है, तो ये सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल में हम क्या करते हैं? हम जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. ब्रोमीन जो है ये पहले आता है B, हाइड्रोक्सिल का H बाद में आता है. देयरफॉर वी शुड गो लाइक दिस वे 1, 2, 3. ये 2, 3 यहाँ था, अब 3 जो है हाइड्रो H को हम नहीं देंगे, हम 3B को देंगे. सो द नंबरिंग विल गो लाइक दिस वे 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now it is very very easy to name this compound. Okay, so what is the name of this compound? पहले यही लिखेंगे 3 ब्रोमो, BROMO ब्रोमो. ओके, 5 हाइड्रोक्सिल, HYDROXYL हाइड्रोक्सिल. देखो, जब भी आप नेमिंग भी करते हो ना, नेमिंग में भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखना है. दैट इज, जिसका फॉर एग्जांपल वो लेटर जो सबसे पहले आता है उसको पहले लिखना है और बाद वाले लेटर को बाद में लिखना है. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेंजाल्डिहाइड. ओके, सो दिस इज बेंजाल्डिहाइड. सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, सो आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ आ गया. दैट इज, अगर मेरे पास मेन कंसेप्ट जो यहाँ पर था वो ये था कि अगर हमारे पास प्रियोरिटी टेबल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नजर आते हैं, तो उसमें प्रियोरिटी वाइज जो सबसे ऊपर होगा उसको हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रीट करेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जो रह गए उसको हम ट्रीट करते हैं एज सबस्टिट्यूएंट. क्या करते हैं? ट्रीट एज सबस्टिट्यूएंट, और उसकी अहमियत उतनी ही होती है जितनी आम सबस्टिट्यूएंट की अहमियत होती है. शॉर्टकट. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question. See, you know the rules of numbering, that is, when we have a double bond, okay, we should start numbering from the double bond itself. Okay, from the carbon जिस पे डबल बॉन्ड होगा. सो या तो हमें यहाँ से करनी है या तो यहाँ से करनी है. ऑब्वियसली मेन चेन यहाँ पर यही, इसमें कोई जो है ना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है. सो इधर वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर और वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर. नाउ इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, सो इट विल बी लाइक 1, 2. लेट मी duplicate, let's take it here. Okay, so if I will go like this 1, 2,
3 4 5 6. Another way is 1 2 3 4 5 6. And there is one another way. Let me go for that one also. चलो मैं बनाता हूँ डायरेक्टली. There is one another way. That way is like this: 1 2 3 4 5 6. इनमें से सही कौन है हमें अब ये देखना है, ठीक है ना. तो ये सारे के सारे कंफ्यूजिंग है. सी इफ वी विल गो लाइक दिस वे, हम बिल्कुल गलत जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लीस्ट नंबर दे रहे हैं, 1 और 2 दे रहे हैं. लेकिन जो सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट को भी तो लीस्ट देना है. हम तो यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट को 2 देते हैं एज कम्पेयर टू दिस. यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट को भी 1 आता है और डबल बॉन्ड को भी 1 आता है. अब इसके बारे में यहाँ पर डबल बॉन्ड को 1 आता है और फिर हम ऐसे जाते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर जो सबस्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग आती है वो आती है 2 3 4. ओके, यहाँ पर जो सबस्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग आती है वो आती है 1 6 और 1 5 6. ठीक. और यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट्स को जो नंबरिंग आती है वो आती है 1 2 3. फ्यू पीपल विल गो लाइक दिस कि यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग जो है 1 2 3 आती है, तो सबसे कम यही है तो हम इसके साथ जाएंगे. ये भी गलत है. ये तो लोग वैसे भी इसको जो है ना, इसको वो इग्नोर करेंगे. और कुछ लोग इसके जाएंगे फिर 2 3 4, क्योंकि ये भी इससे छोटा है. नहीं, देखो ये वाला जो है, ये वाला आउट ऑफ कंसेप्ट ही है. इसको कोई नहीं लेगा लगभग. इस वाले को कोई नहीं लेगा लगभग, है ना. बट इस वाले को मैक्सिमम लोग, इस वाले को मैक्सिमम लोग. लेकिन ये नहीं लेना है. लेना ये क्यों? देखो, the first thing that I'm going to tell you is that you have to give the least number to the carbon to be the double bond is attached. लेकिन यहाँ पर आपको बोनस मिलता है कि उसी कार्बन पे यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट भी है, तो आपको सबस्टिट्यूएंट को भी लीस्ट नंबर मिलता है और उस कार्बन को भी लीस्ट नंबर मिलता है जिसपे डबल बॉन्ड है. तो इट्स लाइक दिस 1. अब बताओगे हम 2 इसको देंगे. नहीं, 2 इसको नहीं देना है. रीजन क्या है? रीजन ये है कि डबल बॉन्ड का जो दूसरा कार्बन है उसको भी लीस्ट नंबर, नेक्स्ट लीस्ट नंबर उसको आना चाहिए. तो 1 जो है वो 2 यहाँ से जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, वो यहाँ से जाएगा. ठीक. तो इट इज 1, इट्स 2, इट्स 3, इट्स 4. तो ये वाली नंबरिंग जो है वो करेक्ट है. दिस नंबरिंग इज करेक्ट. Okay, so मैं यहाँ पर लिखूंगा this is wrong, and this one is correct. Okay, and therefore what should be the name of this organic compound? Let me write it here. Okay, let me write it here. 1, 5, 6. Trimethyl cyclo. फिर क्या है? हेक्स. फिर इन. 1 इन है तो वो हमें मालूम ही है, तो 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है. हेक्सीन तो हम जानते हैं. ठीक. तो ये वाला भी हो गया. तो इसमें कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि अगर आपको फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड कोई कार्बन आता है या ट्रिपल बॉन्ड कोई कार्बन आता है, तो यहाँ पर लीस्ट नंबर जो है उस वाले कार्बन को देना है जिसपे डबल बॉन्ड होगा. लेकिन अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि सबस्टिट्यूएंट को भी लीस्ट नंबर आता है, तो आप सबस्टिट्यूएंट को भी उसको इंक्लूड करिएगा वहाँ. फिर अगर सबस्टिट्यूएंट को नेक्स्ट लीस्ट नंबर नहीं देना है, नेक्स्ट लीस्ट नंबर किसको देना? जो नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा. ठीक. तो ये कंसेप्ट था यहाँ पर. अब इसमें आते हैं. देखो, where from we should start? Okay, first of all we have to select the main chain, principal carbon chain. Principal carbon chain में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो हम ट्रीट करेंगे वो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे उसमें. और दूसरी बात जो उसमें होना चाहिए, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए. तो आप देख सकते हो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन. सो दिस इज द फंक्शनल या प्रिंसिपल कार्बन चेन. सो दिस वन. ठीक है. अब कहाँ से नंबरिंग करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 या यहाँ से. बहुत ईजी है, यहाँ से नहीं जाएंगे. द रीजन इज दिस अगर यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर ब्रोमीन आता है, दैट इज अ गुड थिंग. बट डबल बॉन्ड जो है वो 3rd नंबर पे आता है. वी नो दैट फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है सबस्टिट्यूएंट से. जब हम नंबरिंग देते हैं तो लीस्ट नंबर किसको आना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को पहले, फिर उसके बाद हम सबस्टिट्यूएंट का देखेंगे. तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा. सो 1 2 3 4 5. सही है. अब इसकी नेमिंग ईजी है. मिथाइल से पहले हम ब्रोमीन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो, BROMO ब्रोमो. ठीक है. 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 3 METHYL मिथाइल. फिर पेंट, PENT पेंट, 2 ENE पेंटीन. तो ये आपकी नेमिंग हो गई यहाँ पर. ठीक है. सो दीज वर अ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी मैंने यहाँ पर नेमिंग की. और यहाँ पर फोकस जो था वो नेमिंग पे नहीं था. मैंने पहले कहा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बल्कि इंपॉर्टेंट जो है वो ये है हाउ टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो मैंने यहाँ पर हाउ टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड फोकस किया, नॉट जस्ट ऑन नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड.